रिप्लाईज भी दो तरह के, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल वहां पे था, वैसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल यहाँ पे. Formal or informal, again the same difference is there. When we are talking about formal replies, means we are using third person and we are writing very precise, to the point, very short note, accepting or refusing the invitation. Reply में ये भी हो सकता है ना, हाँ हम आ रहे हैं, और refusal हो सकता है नहीं हम नहीं आ रहे. Whatever is the reason, we are explaining that. Yes, Mohit. Mohit, Mohit, you want to say something? आपने रेज हैंड किया है. मोहित. यस मैम. यस बच्चा. मैम आपने स्क्रीन शेयर कर रखी? नहीं अभी नहीं की है. I'll share my screen. Okay, I've not Okay. shared it. So I was explaining that what is a reply. Reply means your answer. Yes. So let us see how we write a reply. Chiransh, I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, bacha, please start reading. Yes, ma'am. Writing replies, formal and informal. A formal reply is usually very short. It is brief and to the point. The quality of a good reply is that it must always be pleasant. Pleasant. Even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. Courteous. Yes. Formal replies demand a formal tone and treatment. There is no room for unnecessary details or Superfluous. Superfluous means बड़ा चढ़ा के कुछ भी बात करना. superfluous matter in them. An informal reply or private letter may, however, express personal feelings or desire in an intimate style and informal tone. Main characteristics: formal replies acknowledge the invitation, express thanks in third person, mention acceptance, regret, specify the reason for refusal, be brief and specific, be formal in tone and treatment, do not exceed the word limit, usually 50 words. Informal, acknowledge the invitation in first person, use second person for the sender of invitation, mention acceptance, regret, specify the reason in case of refusal, use warm and simple language, do not exceed the word limit, usually 50 words. Yes. So let's see. A formal reply. Yes, Mohit, you raised hand. मैम हर बार रिफ्यूज कोई होगा? नहीं हर बार नहीं होगा. अगर हम रिफ्यूज कर रहे हैं तो उसका एक रीजन देना. एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे, हम दोनों तरह के करेंगे. Formal reply is very short and crisp. It is very brief, to the point. We are not going to hover around the topic. Yes, a good reply, it must be pleasant. Pleasant का मतलब क्या है? प्यारा होना नहीं है. यहाँ pleasant का मतलब है the language should be pleasant. Even if we are declining, if we are saying no to the invitation, or we are showing our inability to attend the event, we must be polite and courteous. Courteous means respectful. Formal replies demand a formal tone and treatment. अब मैं ये भी बताऊंगी अभी बिना नीचे जाए क्वेश्चन में कि हम कैसे उसको यूज करते हैं. There is no room for unnecessary details or exaggerated matter in them. Superfluous means exaggerated. An informal reply or private letter may, however, express personal feelings or desires in an intimate style and informal tone. अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद मैं दोनों रिप्लाईज का आपको एग्जांपल दूंगी कि सेम क्वेश्चन लेकिन अगर सिचुएशन अलग अलग है तो रिप्लाई कैसे लिखा जाएगा. Formal reply. Firstly, we have to acknowledge. Acknowledge means thank you for your letter or accept your invitation. Express thanks in third person. अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? I, we, you नहीं यूज होगा. He, she, he यूज होगा. Third person यूज होगा. We are going to mention our acceptance or regret for refusal. ठीक है. इसके बाद we have to be very brief and to the point. We have to be formal in tone and treatment. We should not be exceeding the word limit, which is around 50 words. Informal में we are going to use first person for ourselves, means I or we.
And for in sender of the invitation means to whom we are writing the reply, we are going to use you. Acceptance, regret. If we are refusing, then we have to express regret. Otherwise, we are going to accept. We have to use warm and simple language. And we need not to exceed the word limit. Okay, and we have to use 50 words only in expressing the invitation. Right? अब देखो, अब मैं suppose Chiransh is the manager of a company and he has invited me to as the chair, as the chief guest of an event. So what will I do? And I am suppose a well-known politician. So what would I say? So and so MLA of so and so place thank, पहले आपको आपका नाम लिखा जाएगा, चिरांश कावरी, मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी, फॉर द इनवाइट फॉर दिस एंड दिस सेरेमनी. With a heartfelt regret, it is hereby conveyed that it would not be possible to accept the invitation and attend the ceremony. वॉइस ब्रेक हो रही है, देखो अभी भी ब्रेक हो रही है. No, ma'am. एक बार चेक करो, सिग्नल चेक करो अपने. मोहित. Ma'am, I am not saying. Harshit is saying. अच्छा हर्षित, सॉरी हर्षित. Now is it still breaking? Ma'am. Yes बच्चा. मैम एक बार आप प्लीज दोबारा बता दो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन. Third person, he, she, it or they. Right? Yes, ma'am. First person, I or we. Second person, you. Okay, ma'am. Okay. चलो. Now let us start. अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रही हूँ. तो मैं जो एग्जांपल आपको दे रही थी, सपोज आई एम द पॉलिटिशियन ऑफ an area and Chiransh is the manager who has sent me the invitation to attend the ceremony. So what will I say? Firstly, I'll write my name, so and so MLA of so and so district or so and so place. Thank Chiransh Kavri, manager of so and so company, for inviting the concerned person to the ceremony of inauguration or whatever is the ceremony. Then it is hereby conveyed that it would not be possible to attend the ceremony due to a prior appointment with the governor or a prior promise. Anything can be there. Absence or refusal from this side is sincerely regretted. Looking for a future endeavor or looking for future meeting very soon. अब मैंने यहाँ I और V यूज नहीं किया, ठीक है. अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं. देखो अब पहले हम फॉर्मल रिप्लाईज के सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हैं. हर्षित, अब आ रही है आवाज ढंग से? अच्छा, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल क्लियर है और सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है. एक बार अपने सिग्नल चेक करो. यस, चलो मोहित, इन द मीन टाइम यू मे रीड. Yes, ma'am. Draft a formal reply accepting an invitation to be represented on the occasion of the wedding of Ankush, son of Mr. and Mrs. Shankar of 24 Green Park Road, Kanpur. You are Vikram Gaur of Raja Ki Mandi. Mr. and Mrs. Vikram Gaur thank Mr. and Mrs. Vikram Gaur thank Mr. and Mrs. Shankar for inviting them on the occasion of the wedding of their son, Ankush, at 24 Green Park Road, Kanpur, on 15th of May 2022, and assured them that they will be presented on the occasion to wish the newlyweds a happy married life. Mr. and Mrs. Gaur will reach Kanpur by the Agra mail, which leaves Agra at 8 a.m. Vikram Gaur, 5th May 2022. देखा? अब देखो यहाँ पे अब कितना सारा मैंने अपने क्वेश्चन में से लिया है. सबसे पहले देखो, यू आर विक्रम गौर, है ना. तो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर, ठीक है. विक्रम गौर एंड हिज वाइफ, दोनों के लिए इनविटेशन था,
थैंक, अब ये देखो ये रहा, मिस्टर एंड मिसेस शंकर, मिस्टर एंड मिसेस शंकर फॉर इनवाइटिंग देम, अब ये फिर यहाँ से आ गया, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ देयर सन अंकुश एट, अब ये भी यहाँ से 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर। अब डेट मैंने इमेजिनरी खुद क्रिएट कर दी ऑन 15th May 2022 एंड एश्योर देम, अब क्योंकि वी आर एक्सेप्टिंग द इनवाइट सो वी आर सेइंग एंड एश्योर देम that they will be present on the occasion to wish the newlyweds a very happy married life. And now, हाँ जी, I'm sorry to disturb in between. yes मैम, बच्चा, I was saying that कि मैम जैसे मिस्टर और मिसेस गौर है वो तो खुद लिख रहे हैं ना रिप्लाई, हाँ, तो वो फिर दे क्यों लिख रहे हैं? Assure them that they will present. एश्योर देम, मैम ये वी, उनको देम, नहीं नहीं, एश्योर देम, देम यहाँ पे किसके लिए है? मिस्टर एंड मिसेस शंकर के लिए। मैम आफ्टर दैट के बाद जो दे लगा है वो किसके लिए? दे, अब यहाँ पे हम थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं ना बच्चा, हम फर्स्ट पर्सन नहीं यूज कर सकते। मिस्टर, ओके मैम। अगर यहाँ पे हमें इनफॉर्मल लिखना होता है इस रिप्लाई को तो मैं कैसे लिखती? आई एंड माई वाइफ थैंक, मिस्टर एंड मिसेस शंकर नहीं आएगा यहाँ पे, थैंक यू, ऊपर पहले नाम आ जाता, मिस्टर एंड मिसेस, डियर मिस्टर एंड मिसेस शंकर, I and my wife thank you for inviting us on the occasion of the wedding of your son Ankush at so and so place on this and this date, and assure you that we will be present on the occasion to wish the newlyweds a very happy married life. We will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 AM. Clear हुआ? अब जैसे ही मैंने ये सब Yes, यूज किया तो मेरा वो जो रिप्लाई था वो इनफॉर्मल हो गया। yes मैम, गॉट इट। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग फॉर्मल, फॉर्मल टोन आती ही तब है जब हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग फर्स्ट और सेकंड पर्सन एट ऑल, राइट? So Mr. and Mrs. Gaur Yes मैम, have also informed at the end that when they would be leaving when they would be reaching Kanpur, which train they would be boarding at Agra, so that Mr. and Mrs. Gaur means are received by Mr. and Mrs. Shankar at the station. Got it? yes मैम, थैंक यू मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो मैरिज का था, अब यहाँ पे क्या है? हर्षित, नाउ इज इट बेटर द वॉइस? मैम ही लेफ्ट। अच्छा, आई थिंक ही हैज अ मेजर सिग्नल इशू। चिरांश, आर यू देयर? Yes, ma'am. यस बच्चा, रीड। You are Dr. Avinash Bhalla. You have received an invitation from the Director Health Service Haryana, who has invited lending medical leading medical practitioners practitioners of the state to attend a workshop on childcare on 20th May 2022 at 10 AM in Civil Hospital Ambala. Respond to the invitation. Dr. Avinash Bhalla has a great pleasure in receiving the invitation from the Director Health Service Haryana to attend the workshop on childcare on 20th May 2022 at 10 AM in Civil Hospital Ambala. He confirms his presence with thanks. Avinash Bhalla, 16th March 2022. देखा कितना सिंपल था, आधे से ज्यादा लैंग्वेज क्वेश्चन में से थी। डॉक्टर अविनाश भल्ला thanks or has a great pleasure in receiving the invitation from Director Health Services to attend a workshop on childcare on 20th May 2022 at 10 AM in Civil Hospital Ambala. And आपको ऊपर, एक मिनट बच्चा, आपको ऊपर ही क्वेश्चन में दिया हुआ है who has invited of the state, अच्छा आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? He confirms his presence with thanks. अविनाश भल्ला नेम आ गया, फिर डेट आ गई। हाँ जी बोलो चिरांश। मैम इसका जो हम जैसे इनविटेशन का रिप्लाई देते हैं वो बॉक्स में तो नहीं आता ना? नहीं नहीं, वो बॉक्स में नहीं आता, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कभी भी फॉर्मल में, हाँ बोलो। फॉर्मल में हम थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन यूज कर सकते नहीं, थर्ड पर्सन ओनली। कहाँ है सेकंड पर्सन? मैम इसमें तो लिखा हुआ है he confirms his presence with thanks. ही थर्ड ही तो पर्सन है। मैम ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन ही तो होते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड पर्सन। ओके मैम, ओके, यस मैम, गॉट। और फॉर्मल रिप्लाई लिखना सबसे आसान है क्योंकि आधे से ज्यादा कंटेंट आपको क्वेश्चन में से मिल जाता है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें वी आर गोइंग टू से नो टू द इनविटेशन, ठीक है?
Mohit, you read. Yes, ma'am. Draft a formal reply expressing your inability to attend the inauguration of the showroom Regala on Sunday, the 20th of July 2022 at 11 a.m. at B12 Rohini. You are Naveen Jain of C5 kg GK. GKG हाँ. GKG New Delhi, and your friend is GL Bansal of 23 Sundar Nagar, New Delhi. Hmm. CK5 C5 GKG New Delhi, 15th of July 2022. Mr. and Mrs. Naveen thank Mr. and Mrs. GL Bansal for the invitation to the inauguration of their showroom Regala on Sunday, the 20th of July at 11 a.m. at B12 Rohini, Delhi. However, they expressed their inability to be present on the occasion due to a prior commitment. James. Yes. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने फॉर्मेट थोड़ा सा हिला दिया. ऊपर हमने क्या लिखा पहले, सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, हमारा एड्रेस है ना ये C5GKJ न्यू दिल्ली एंड देन डेट. दोनों तरीके हैं लिखने के फॉर्मल रिप्लाई. मिसेज एंड मिस्टर नवीन जैन, वहां पे वही टैगलाइन आ गई फिर से, थैंक्स सो एंड सो फॉर द इनविटेशन टू द इनॉग्रेशन. सो डेट आ गया, वेन्यू आ गया, टाइम आ गया. अब उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी. अब जब यहाँ पे होता है ना फॉर्मल रिप्लाई में, हम कभी भी रीजन नहीं देते, हम सीधा यही कहते हैं ड्यू टू अ प्रायर अपॉइंटमेंट, और ड्यू टू एन इमरजेंसी इन द फैमिली, और ड्यू टू प्रायर अपॉइंटमेंट. ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं. हियर वी डोंट गिव एनी डिटेल्ड रीजन इन फॉर्मल रिप्लाईज व्हेन वी आर सेइंग नो. However, they express their inability to be present on the occasion due to a prior commitment. And सीधा हमने क्या लिखा नीचे, Jains. Jains refers to Naveen Jain and his family. Clear? Yes, ma'am. Got. चलो next, चिरांश, next question आप पढ़ोगे. ये बहुत है. चलो पढ़ो. You are Aksha Akriti. You have been invited to participate in a seminar on fundamental rights of children, organized by the Lions Club of your district. Respond to the invitation by writing a letter to the secretary of the club. 25 Alambagh Road, Meerut, 5th May 2022. The Secretary, Lions Club, Meerut. Sir, subject acceptance of invitation. Thanks for your invitation for a seminar on fundamental rights of children and your concern for the underprivileged children. I would like to utilize this opportunity to share my experience with other like-minded enthusiasts and experts. I hereby confirm my participation in the seminar. Yours sincerely, Aksha Akriti. Or, sir, subject inability to accept the invitation. Thank you very much for inviting me to participate in a seminar on fundamental rights of children. I feel honored and obliged. However, I shall not be able to accept your invitation due to some previous commitments which keep me confined to my place on that day. Thanking you once again for your kind invitation. Yours sincerely, Aksha Akriti. Yes. अब देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब हमने दोनों तरह के इनविटेशन देखे हैं. एक वो जिसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इनवाइट, और एक वो जिसको हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो हमने इसको लेटर की तरह ही लिखा है. सबसे पहले हमारा एड्रेस, फिर डेट, फिर सेंडर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. ठीक है, उसके बाद सर, फिर सब्जेक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन. अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज किया, लेकिन हम डिटेल में नहीं गए हैं, एग्जैजरेट नहीं किया हमने. ठीक है, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन फॉर अ सेमिनार, और यू आर हियर बाय हियर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, और यू आर हियर बाय रिगार्डेड a heartfelt thanks for a seminar for inviting. अब यहाँ पे मी के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते. रीजन बीइंग, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्यों यहाँ पे आई यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन देखो,
You are Akshay or Akriti. You have been invited to participate in a seminar on the organized by Lions Club of your district. अब यहाँ पे आपको लगता है अक्षय और आकृति की कोई पोस्ट है? No, ma'am. नहीं ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमने इस फॉर्मल रिप्लाई को कि मतलब वो एक या तो कोई इंटर्न है या स्टूडेंट है या कोई सीखने वाला बच्चा है, उसको उन्होंने इनवाइट किया है कि वो करे अटेंड, और ये बच्चा ये स्टूडेंट ये जो भी है ये क्लब के सेक्रेटरी को इनविटेशन का रिप्लाई लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन को यूज किया है ताकि वो रिप्लाई थोड़ा सा एटीट्यूड वाला ना हो और बहुत ज्यादा फॉर्मल ना हो जाए कि उस रिप्लाई में एटीट्यूड लगे. दैट इज व्हाई द reply is starting this way. Thank you for your invitation for a seminar on fundamental rights of children and your concern for the underprivileged children. I would like to utilize this opportunity to share my experiences with other like-minded enthusiasts and experts. I hereby confirm my participation in the seminar, and then same thing, yours sincerely, Akshya or Akriti. Chiransh. Yes, you raised hand. Yes, ma'am. You मैं raised hand. पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो रिप्लाई होता है इनविटेशन का, हमें फॉर्मल नहीं होना चाहिए? फॉर्मली है बच्चा, ये वाला फॉर्मली है. Okay. अभी इनफॉर्मल वाले आएंगे. They are all formal. Why? Because they are being sent by an organization to a person and they are not dealing to any family thing. Right? Friends, families, known में जब जाता है तब वो informal हो जाता है. ठीक है? अब देखो, another same situation पे अगर हम inability show कर रहे हैं that we are not going to accept the invitation, then also we are going to start for the same way. Thank you very much for your invite to participate in a seminar on fundamental rights of children. I feel honored and obliged. However, I will not be able to accept the invitation due to some previous commitment, due to which I have to be confined to my place on that day. Thank you once again for your kind invitation. Done? Clear? एक ही क्वेश्चन पे हमने दोनों सिचुएशन पढ़ ली, और दोनों सिचुएशन में अगर आप नोटिस करोगे 50 वर्ड्स भी पूरे नहीं है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स. ठीक है? चलो मोहित, लास्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मल रिप्लाईज, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड. Mr. Arun Verma's father died on 25th of October 2022. His friends and relatives wrote to him Condoling. Ma'am, condoling the death of his father. Draft a formal reply on the behalf of Mr. Verma. His address being 75 Ring Road, Alwar, Rajasthan. अब देखो, Mr. Arun, एक मिनट मोहित, कंडोलिंग क्या होता है? ढाढ़स बंधाना, सहानुभूति जताना. ठीक है, चलो पढ़ो मोहित. ma'am, is in this case, Arun Verma doesn't know that his father's died. नहीं वो जानता है. Ma'am, then why these friends are writing letter to? एक मिनट. Mr. Arun Verma's father died and his friends and letters wrote to him condoling the death. नहीं, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने उसे ऑलरेडी लेटर लिख दिया टू शो देयर कंसर्न दैट वी आर रियली रिग्रेटफुल टू हियर अबाउट योर फादर्स डिमाइज. नाउ मिस्टर वर्मा मींस अरुण वर्मा इज राइटिंग अ रिप्लाई टू देम. जितने लोगों ने उसे विशेस भेजी थी उसे सहारा देने के लिए, उन सबको वो थैंक यू लेटर लिख रहा है, रिप्लाई लिख रहा है. Okay, ma'am. ओके, सिचुएशन ये है. Mr. Arun Verma of 75 Ring Road, Alwar, Rajasthan, feels deeply indebted to all his friends, relatives, and well-wishers who have been good enough to share his sorrow in his hour of bereavement. Their sympathy, love, and kindness have given him the strength to bear the irreparable loss caused by the sad and sudden dismissal of his father. Arun Verma, 10th of November 2022. अब देखो, यहाँ पे क्या है, हमें किसी का एड्रेस नहीं दिया हुआ और ये जनरल रिप्लाई है जो सबको जाएगा, है ना, उसके सारे फ्रेंड्स को जाएगा. तो यहाँ पे हमने ऊपर कोई लेटर में एड्रेस नहीं लिखा, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा, सीधा हमने रिप्लाई लिखा है. तो यहाँ पे क्या आया, मिस्टर अरुण वर्मा. अरुण वर्मा मैं ही हूँ जो लिख रही हूँ,
Still, I am writing Arun Verma because I am making a formal letter. Mr. Arun Verma of 75 Ring Road, Alwar, feels deeply indebted. Indebted means Karzdar to all his friends, relatives, and well-wishers who have been good enough to share his sorrow in his hour of bereavement. Bereavement means loneliness, when you feel that nobody is there around you, hopeless. Their sympathy, love, and kindness have given him the strength to bear the irreparable loss caused by the sad and sudden demise of his father. And then sender's name and the date. Yes, Mohit. मैम इस केस में भी मैम दोनों कोई मतलब कोई अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है, तो आई और वी का यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाई आपको लिखा हुआ है, तो कोशिश करो आई और वी का यूज कम से कम करो. ठीक है. ओके ओके मैम. चलो अब हम बढ़ रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज की तरफ. अब आप देखना, देयर विल बी अ मार्क्ड डिफरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाईज. चिरांश, रीड बचा. You are Akash Varsha. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation regretting your inability to attend. 205 Vasant Kunj, New Delhi, 4th March 2022. Dear Neha, thank you for your cordial invitation on the occasion of your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion, as we shall be leaving for Shimla for summer holidays on 1st May 2022. Please excuse my absence. Do convey my regards and best wishes to the couple. Yours sincerely, Varsha Akash. अब देखो, यहाँ पे हमें कोई एड्रेस नहीं दिया होता, फिर क्यों बताओ हमने एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा. Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो. हम पेपर में भी ऐसी मतलब अगर एड्रेस ना दे रखा हो तो कुछ भी लिख सकते हैं. हाँ, क्योंकि इनफॉर्मल था ना. देखो अब यहाँ पे फ्रेंड की सिस्टर को लिख रहे हैं ना, फ्रेंड की सिस्टर की मैरिज है ना. Yes. अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया ना. मैं अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही हूँ तो फॉर्मल थोड़ी लिखूंगी. इनफॉर्मल हो गया ना, जहाँ हम बिजनेस में लिख रहे हैं या किसी पोस्ट वाले बंदे को लिख रहे हैं, वहां फॉर्मल हो जाता है. यहाँ तो ऑब्वियसली लेटर क्या होगा, इनफॉर्मल. और हम इसको प्योर, तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि रिप्लाई कोई अलग से चीज होती है. रिप्लाई भी एक तरह का लेटर ही होता है. यहाँ पे मैम हमको, हाँ बोलो बोलो. इट इज मैम कंपल्सरी कि वी हैव टू राइट ओनली इन द लेटर फॉर्म. नहीं नहीं, अभी वैसे भी आएंगे, बिना लेटर के फॉर्म वाले भी आएंगे. अभी कर रहे हैं वो भी. मैं तुम लोगों को याद करने का तरीका बता रही हूँ कि कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ लिखना था क्या कुछ नहीं लिखना था, कुछ नहीं याद आ रहा. इनफॉर्मल रिप्लाई है तो सीधा लेटर की तरह लिख दो एक पैराग्राफ में. ठीक है. कई बार होता है हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मेट को लेके, तो वहां पे वो कंफ्यूजन हमारी इस तरीके से सॉर्ट आउट हो सकती है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, आई इमेजिन्ड एन एड्रेस, देन डेट, एंड देन my friend's name, dear Neha. Thank you for your cordial invitation. Cordial means warm and lovely invitation on the occasion of your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion, as अब उसके बाद मैंने रीजन दे दिया, as I have my exams during this time. पर क्योंकि समर हॉलीडेज हैं तो हम एग्जाम्स का नहीं कह सकते. I shall be leaving for. आपकी वॉइस क्या वॉइस ब्रेक कर रही है? आ यस रही है? मैम. अब आ रही है सही? यस चिरांश बोलो, आपने हैंड रेस किया. अब देखो, अब सही है आवाज? आवाज ठीक है? यस मैम. हाँ. अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, आई शैल बी लीविंग फॉर शिमला फॉर समर हॉलीडेज ऑन सो एंड सो डेट. Please excuse my absence and please convey my, or do convey my regards and best wishes to the couple. Yours sincerely, and then the name. अब देखो, यहाँ पे भी आप रिप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे अब देखो फिर वही एक पोस्ट के लिए हो रहा है. तो यहाँ पे अब हम इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको इनफॉर्मल कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यूज हमने कौन सा किया है, आई और वी का यूज किया. मोहित पढ़ो जरा. Yes, ma'am. You are Arjun/Aparna. Your school has been invited to participate in an inter-school on the
on the spot painting competition organized by the Lions Club of your district. As General Secretary of the painting club of your school, respond to the invitation. DN Public School, Karnal, 7th of May 2022. The President, Lions Club, Karnal. Sir, this refers to your invitation to our school to participate in the on the spot painting competition. We thank you for inviting us and gladly confirm our participation in this interesting competition. Yours sincerely, Aparna /Arjun, General Secretary, Printing Club. अब बताओ इसको देख के क्या लग रहा है, ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है? Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चा बोलो। मैम ये शायद इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है, रीजन बीइंग कि हमने लैंग्वेज ऐसे यूज किया, अदरवाइज मैं अगर इसको फॉर्मल बनाना था, क्योंकि ऊपर मुझे कुछ नहीं दिया हुआ ऊपर फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, कुछ नहीं दिया हुआ। हाँ जी चिरांश, पहले आप पूछो। मैम पर लेकिन जो लिख रहा है वो तो जनरल सेक्रेटरी है, तो मैम इस हिसाब से तो फॉर्मल होना चाहिए रिप्लाई। हाँ तो फॉर्मली बता रही हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे आई और वी करके लिखा, हम इसको फॉर्मल ही लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखती तो वैसे लिखती, डीएन पब्लिक स्कूल करनाल 7th March so द प्रेसिडेंट लायंस क्लब करनाल, सर this refers to your invitation to DN Public School to participate in the inter-school on-the-spot painting competition. The school thanks you for inviting it to this prestigious competition, and with heartfelt thanks confirm their participation in this interesting, or their participation in the aforesaid competition. Yours sincerely, so and so, General Secretary, Painting Club. मैम ऐसा हो सकता है this refers to Lion Club's बिल्कुल ठीक। invitation हाँ, to their school to DN Public School, participate नहीं their school नहीं, to DN Public School. to DN Public School to participate in the inter-school on the spot painting competition. They thank Lions Club for inviting them and gladly confirm their participation in the interesting competition. That interesting competition. ठीक है, समझ आ गया? सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। और जैसे आप लोग लेटर में, याद है हम लोगों ने जब लेटर किए थे फॉर्मल लेटर राइटिंग, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है, एंड दो उसके नंबर नहीं कटते, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग थर्ड पर्सन में यूज करना सीख जाओ। चलो नेक्स्ट वन, मोहित रीड। You are Sachin/Sharma. Shama. You have been selected to represent your school in a seminar on education for all, organized by NCRT. Write a letter to the professor in charge, requesting her to send you a copy of working paper prepared for the seminar to enable you to prepare yourself on the subject. ABC School, New Delhi, 7th of March 2022. The professor in charge, NCRT, New Delhi. Madam, subject education for all. I would like to thank you for inviting our school for the proposed seminar on education for all being organized by your institute. Kindly send me a copy of working paper prepared for the seminar so that I can prepare myself properly and make a meaningful contribution in the deliberations at seminar. Looking forward to an early response. Yours sincerely, Sachin Sharma. Sachin or Shama? Yes. Sorry, Sachin / Shama. Okay, now girls, sorry, boys, have a look that we are talking about the name of the school, address, date, then the designation, organization, address, right? Then subject. अब यहाँ पे देखो, फिर वही आई वगैरह का हमने यूज किया तो ये इनफॉर्मल बन गया। अगर मुझे इसे फॉर्मल बनाना होता तो दिस इज टू थैंक यू for inviting ABC School for the proposed seminar on education for all being organized by NCRT. You are hereby requested to send a copy of the working paper prepared for the seminar so that Sachin or Shama can prepare herself or himself properly and make a meaningful contribution in the deliberations at the seminar. Looking forward to an early response. Yours sincerely, Sachin or Shama. Yes, Chiransh. मैम हम जो सब्जेक्ट है मैडम के ऊपर लिख सकते हैं? हाँ कोई फर्क नहीं, बस लिखना होता है,
ठीक है। ओके मैम। और इनफॉर्मल में नहीं लिखना होता, ये हम तब लिखते हैं जहां हम हमारी पोस्ट नीचे सामने वाले की पोस्ट ऊपर है, जो हम समझ लो जो हम फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट फॉलो करते हैं ना, काफी कुछ वैसा ही है। ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट, इनफॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते। यस मैम। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये थर्ड कैटेगरी है रिप्लाईज की, फॉर्मल इनफॉर्मल के अलावा रिप्लाइंग टू क्वेरीज। अब जब आपसे कोई क्वेरी पूछता है बिजनेस और ऑफिशियल रिप्लाईज जब करने होते हैं तब उनको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह के फॉर्मल ही होते हैं रिप्लाईज। मोहित बेटा रीड करो। Blue Star Electronics Ltd, Ludhiana made an offer to Bhatia Electronics, Rohtak, for the agency of their new model Goldie water coolers. Write a formal letter on the behalf of Bhatia Electronics accepting the offer of the agency. Bhatia Electronics, 5 Palika Bazaar, Rohtak, 6th of March 2022. Messrs. Blue Star Electronics Ltd, Hall Bazaar, Ludhiana. Dear Sir, Subject, Agency of Goldie Water Cooler. We gratefully acknowledge the offer of your agency of your new product Goldie with the terms and conditions contained in the append brochure. Appended means attached. A demand draft of rupees 3 lakh payable at Ludhiana is enclosed. Professor Bhatia, partner. अब देखो यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, ब्लू स्टार इलेक्ट्रॉनिक लुधियाना मेड एन ऑफर टू भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स रोहतक फॉर द एजेंसी ऑफ राइट अ फॉर्मल लेटर ऑन बिहाफ ऑफ भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या है, भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से लेटर जा रहा है दैट वी हैव एक्सेप्टेड योर न्यू प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एजेंसी। यस, तो सी वही फॉर्मेट है। भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सर, सब्जेक्ट, देन अब यहाँ पे ये भी हो सकता था, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द एजेंसी दैट भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स रोहतक हैज is grateful to acknowledge the offer of agency of your new product Goldie with the terms and conditions contained in the attached brochure. A demand draft of rupees 3 lakh payable at Ludhiana is enclosed for your convenience. P. Bhatia, partner. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मेरे हिसाब से क्लियर था। मैंने दूसरी लैंग्वेज में भी आपको पढ़ के सुना दिया कि अगर आप थर्ड पर्सन प्रॉपर यूज करते तो कैसा है। ठीक है, अब देखो, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई टू मेसर्स सुमित ब्रदर्स एक्सप्लेनिंग व्हाई ऑल द ऑर्डर्स हैव बीन कैंसल्ड। पराग टेक्सटाइल्स, अब ये मैं हूँ, सेंडर्स एड्रेस है पहले, पराग टेक्सटाइल 24 ओल्ड फोर्ट रोड सूरत, देन द डेट, देन रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस मेसर्स सुमित ब्रदर्स 26 सेंट्रल मार्केट झांसी। Dear sir, and now the subject, cancelling of orders. Your dealings with us defy all ethics of business norms and culture. In spite of repeated reminders, you have been deliberately withholding outstanding payments. Since the amount due towards you exceed 10 times your deposit with us, we are constrained to cancel all your previous order placed with us. Sales manager. ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सेल्स मैनेजर ने लिखा। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके आपको फिर बता रही हूँ। This is to inform you that the dealings of Sumit Brothers with Parag Textiles defies all ethics of business norms and culture. In spite of repeated reminders, Sumit Brothers have been deliberately withholding the outstanding payments since the amount due towards Messrs. Sumit Brothers due towards the agency exceeds 10 times their deposit with Parag Textiles. Thus, Parag Textiles is constrained to cancel all the previous orders placed with Sumit Brothers. Sales manager. Clear? Same letter को मैंने दो तरह से लिखा। देखो, you are Miss S. Janki, lecturer in physics, Shiarna Girls School, Jodhpur. You had applied for a study leave for 2 years. Draft a reply on behalf of the principal, reply explaining why study leave can't be sanctioned to you. अब principal लिख रही है टीचर को, lecturer को लेकर। शियारना, अब सेंटर कौन है? शियारना गर्ल्स स्कूल जोधपुर की तरफ से जा रहा है।
डेट आ गई, और फिर रिसीवर कौन है? मिस एस जानकी, लेक्चरर इन फिजिक्स। डियर मैडम, अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते थे, ठीक है। स्टडी लीव कांट बी सैंक्शन, और रिफ्यूजल टू सैंक्शन स्टडी लीव। This is regretful to inform Miss S. Janki that her application for study leave has been rejected by the governing body as she has failed to fulfill the minimum eligibility period of 5 years regular service. She may apply afresh and when she is eligible to avail this facility. और आपको जो लैंग्वेज दी है वो आई से है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव हैज बीन रिजेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी as you fail to fulfill the minimum eligibility period of 5 years regular service. You can apply afresh as and when you are eligible to avail this facility. Yes, yours faithfully, principal. ठीक है? ठीक है बॉयज, कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। रिप्लाईज की सबसे अच्छी बात यह है कि रिप्लाईज को आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन जरा पढ़ो, फिर मुझे बताते रहो किस किस तरह का इनविटेशन या रिप्लाई लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, दोनों साइलेंटली पढ़ो, और फिर उसके बाद मुझे बताओ कौन किस तरह का रिप्लाई लिखा जाएगा। पहले में तो क्वेश्चन में लिखा है इनफॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल इनविटेशन है, ठीक है। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड Second वाले में भी में लिखा है फॉर्मल, थर्ड वाले में फॉर्मल। फॉर्मल है। अब ये कैसा जाएगा? Formal। देखो, फॉर्मल प्रिंटेड इनविटेशन, तो ये प्रिंटेड इनविटेशन कौन से वाला याद है? हमने शुरू में किए थे बॉक्सेस में। यस मैम। ये वो वाला इनविटेशन, समझ आ गया? जो जनरल सबको जाएगा, ऊपर इनविटेशन को भेजने से पहले उसका नाम लिखा जाएगा, बस किसके पास जा रहा है, राइट? चिरांश बोलो बेटा। हाँ, फिर ये जो प्रिंटेड वाला इनविटेशन होगा ये तो मतलब हमेशा फॉर्मल में होगा ना? फॉर्मल में ही आता है बेटा, प्रिंटेड इनविटेशन कभी इनफॉर्मल में नहीं आता, फॉर्मल में आता है हमेशा प्रिंटेड इनविटेशन, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फॉर्मल। फॉर्मल और वो भी प्रिंटेड, तो कैसा जाएगा? मिस्टर एंड मिसेस वी के मेहरा इनवाइट यू ऑन द मैरिज ऑफ देयर डॉटर प्रभा विद मयंक। को जैसे प्रॉपर इनविटेशन कार्ड नहीं छपता वैसे जाएगा। एट सो एंड सो डेट, एट सो एंड सो प्लेस, ऑन सो एंड सो डेट, एट दिस एंड दिस टाइम। क्लियर मैम हाँ जी बोलो। इनवाइट यू क्यों आएगा? इनवाइट यू नहीं वो नहीं तो फिर सेकंड। नहीं यू नहीं आएगा। ये देखो जैसे हमने पहले नहीं किया था, तुम लोग भूल जाते हो, वो जो हमने ऊपर इनविटेशन नहीं किए थे, सॉलिसिटी और प्रेजेंस। अरे सॉलिसिटी और प्रेजेंस याद है? वो लैंग्वेज हमने की थी, मिस्टर एंड मिसेस मेहरा सॉलिसिटी और प्रेजेंस। देखो ये रहा, योर बिनाइन प्रेजेंस, देखा? योर का मतलब ये थोड़ी Yes, बेचारे को ma'am। काट के निकाल के फेंक दो कि वो इनफॉर्मल का पार्ट है, नहीं, उसमें तो आएगा, अच्छा ओके मैम। ठीक है, समझ आया? ये देखो ये सारे वही है। मैरिज वाला भी दिखाती हूँ तुम्हें, मैरिज वाला भी था, जैसे फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी वाला है ना, ऐसे ही मैरिज वाला भी था एक, जो हमने शायद किया था, या फिर नहीं होगा। ये जैसे ये है ना फिफ्थ फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी, यहाँ पे आना था मिस्टर एंड मिसेस मेहरा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, अब वहां पे फिर बोल्ड होके आ जाएगा, मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर, पहले डॉटर का नाम आ गया, विद, फिर बॉय का नाम आ गया, ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा सन ऑफ सो एंड सो, एट, प्लेस का नाम आ गया, टाइम आ गया, और फिर उसके बाद डेट आ गई, फिर RSVP। ठीक, समझ आया? प्रिंटेड इनविटेशन ऐसे होते हैं, ये जितने हमने बॉक्स में किए सारे मैम यू प्रिंटेड। तो नहीं आएगा ना? यू ऊपर आ रहा है ना, ये देखो ये आ तो रहा है, ये रहा, योर बिनाइन प्रेजेंस मिला, देखा? योर जो कर्सर है Yes, मेरा ma'am। जहाँ पे, ये योर आ तो रहा है यहाँ पे। सॉलिसिट योर प्रेजेंस, योर बिनाइन प्रेजेंस, योर वर्चुअल प्रेजेंस, जो भी हम लिख रहे हैं, ये देखो ये रहा, प्लेजर ऑफ योर कंपनी, एक बार तो आएगा बेचारा, योर कैसे नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम, गॉट इट। चलो आगे देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, हम फोर्थ क्वेश्चन पे थे ना, फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया। चलो फिफ्थ वाला देखो, हम फॉर्मल।
फॉर्मल और कैसा वाला आएगा? इनफॉर्मल। नहीं, फॉर्मल आएगा और प्रिंटेड आएगा। मैम प्रिंटेड। एनुअल फंक्शन वाला याद है हमने जैसे पिछली बार किया था, क्योंकि पेरेंट्स को जा रहा है, अलग मैम अलग बट थोड़ी जाएगा हर एक के लिए पेरेंट्स लैंग्वेज। को तो बताओ, तुम लोगों के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, प्रिंटेड कार्ड मिलता है ना? यस मैम, सॉरी फॉर्मल। है ना, फॉर्मल हुआ ना। You were invited by the local unit of Boogie Woogie, a talent search organization, to make a selection of the local team for participation in the zonal competition and performance at the national. But you are not in a position to do so because you have met with an accident. Write a letter to the convener, regretting your inability to honor the request, explaining to him your position. अब बताओ ये कौन सा आएगा? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आएगा। वो तुम्हारा फ्रेंड है, कन्वीनर फ्रेंड है तुम्हारा। मैम बट फिर वो वाली बात आ जाएगी, अगर फॉर्मल लिखेंगे तो वो एटीट्यूड वाली बात आ जाएगी। नहीं नहीं, वैसे मत लिखो, थर्ड पर्सन मत यूज करो, आई और वी, आई और यू यूज करते हुए, लेकिन प्रॉपर फॉर्मल आएगा। लैंग्वेज थोड़ी सी हम इनफॉर्मल रख लेंगे, आई और यू को यूज करेंगे, लेकिन हम बाकी सारी चीजें जो लिख रहे हैं फॉर्मेट हम पूरा फॉर्मल वाला यूज करेंगे। यस चिरांश? मैम पर 6 क्वेश्चन में तो लेटर मांगा कि राइट द लेटर ही तो रिप्लाई, रिप्लाई नहीं किया अभी हमने, लेटर इतने सारे रिप्लाई तो करना है यहाँ पे। नहीं मैम, पर अगर ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मैम हाँ। हमें तो लगेगा ये फॉर्मल लेटर मांग रहे तो हम मैम पूरा लेटर ही लिख देंगे 3 हाँ तो Yes, पेज ma'am. का। अरे बेटा, ऊपर जो तुमने क्वेश्चन किए अभी हमने उसमें लेटर ही तो लिख रहे थे, वो कहा नहीं फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे सिर्फ ये है लेटर। देखो, तुम्हारा जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें लेटर कौन सा है? लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन है, राइट? यस मैम। तो बाकी कोई भी लेटर आ जाए तो मतलब क्या है, वो रिप्लाई का पार्ट है, अंडरस्टूड है। तो वहां पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ओके मैम। ठीक है? चलो आगे देखो, 7th क्वेश्चन। मैम फॉर्मल। फॉर्मल। चलो नेक्स्ट देखो, 8 वाले में तो सीधा दिया इनफॉर्मल। हुआ है इनफॉर्मल। 9 9 भी इनफॉर्मल। 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 10th फॉर्मल। फॉर्मल। प्योरली फॉर्मल। प्योरली फॉर्मल मतलब लैंग्वेज भी थर्ड पर्सन में आएगी। क्यों? पर्सनल मैनेजर की हैसियत से लिख रहे हो आप किसको? सुमित हेगड़े को, कि आप उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो आप कंपनी की साइड से लिख रहे हो ना, आप अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो लैंग्वेज जाएगी वो प्योर फॉर्मल जाएगी, इन यानी थर्ड पर्सन, राइट? समझ आ गया? यस मैम। अब कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम हमें नहीं समझ आ रहा कि कब फॉर्मल लिखना है कब इनफॉर्मल लिखना है? नो मैम। अब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे ना, देन यू पीपल विल बी एबल टू गो थ्रू इट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम कुछ इनविटेशंस लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहले इनविटेशन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिप्लाई। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी मोहित। मैम थोड़ा जैसे ग्रामर भी वीक है तो उसकी प्रैक्टिस भी तो याद होगा। क्या? दोबारा बोलो। मैम लाइक रिवीजन, मतलब बहुत दिन हो गए, मतलब ऐसे 2 साल हो गए पूरे ग्रामर हाँ जैसे एडजेक्टिव रिवीजन मैम। हाँ, अब क्या कहना क्या मैम चाह रहे हो, वो मुझे आप क्लियर करो मैम कि लाइक लैंग्वेज की। रिवीजन टाइप। हाँ, लैंग्वेज की प्रॉब्लम ही कह रहे हो ना, कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सप्रेशंस में यस प्रॉब्लम मैम। हो सकती है, कोई बात नहीं। हम यस लोग उसको रिटर्न में ऐसे नहीं करेंगे कि तुम लोग लिख के बैठ गए और तुम लोग मुझे भेज रहे हो, फिर मैं चेक करके तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भेज रही हूँ। नहीं, हम लोग एक क्लास में टारगेट रखेंगे कम से कम 2 इनवाइट अटेम्प्ट करने की, क्योंकि इनवाइट 50 वर्ड्स का है। तो तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा कितने लगेंगे? 5 to 10 मिनट्स लिखने के लिए। और तुम लोग जो भी लिखोगे, आई विल आस्क यू टू रीड इन द क्लास ओनली, और साथ साथ में तुम्हारी मिस्टेक्स करेक्ट करा दूंगी, राइट? इससे बाकियों को भी आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, और तुम लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा कि थॉट को और कैसे बेटर करके लिखा जा सकता है, राइट? यस मैम। ठीक है चिरांश, आप बोलो, आपने भी हैंड रेस किया था बेटा। मैम आप प्लीज कोई एक्स्ट्रा बुक सजेस्ट कर दो इंग्लिश के बेटा लिए। एक्स्ट्रा बुक ना मैं अभी इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास ना अभी तक कोई अपडेटेड बुक आई नहीं है जिसमें सीबीएसई का अपडेटेड सैंपल आ गया हो। सीबीएसई ने लास्ट टू लास्ट वीक ही तो निकाला है उन्होंने अपना सैंपल, और अब मुझे नहीं लगता अभी अपडेटेड आया है। तो आई विल सजेस्ट कि व्हेन यू आर गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप टू परचेज द बुक, ठीक है ना, ये जितने भी हैं अरिहंत, एग्जाम आइडिया और ये सब जितने भी मार्केट में वेल नोन नेम्स हैं, बस सैंपल पेपर देख के चेक करके लेना कि वो अपडेटेड वाला है उसमें और वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो उसको परचेज करना, नहीं तो नहीं। ओके मैम। ठीक है ना? तो चलो, ऑन दिस नोट वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। मैं आज ये नोट्स तुम लोगों को भेज दूंगी। मेक श्योर यू पीपल आर रिवाइजिंग इट फॉर